हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। बच्चों, टिल नाउ वी हैव completed the first two chapters of your science subject class 6, and I hope you liked all the previous videos, and I request you, if anybody of you is new to my channel, please watch the earlier videos to make yourself comfortable and to understand all the previous chapters. And today I am starting this chapter number 3, that is fiber to fabric. Bacho, in your senior class also you will read this chapter, so please pay attention on this chapter so that in the next class when you will reach the class 7, same chapter you will get, but in an elaborate way. So here you just pay attention, and if you feel any inconvenient, any problem, please comment me so that I will rectify your problems. Okay, so let's start today's chapter, that is fiber to fabric. So here, as we have discussed earlier, Paheli and Bujo, their classmate, school friend, they are very curious, are very scientific. Always they are asking questions to each other and rectify their problems. So here is also Paheli and Bujo. So Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz. Okay, competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth materials, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि पहली एंड बूझो को जो है उन्होंने जो है अपने साइंस क्विज में अपने स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीता। ओके, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो उनको जो प्राइज में जो पैसे मिले हैं उससे वो जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। तो वो चले गए मार्केट। अब मार्केट में क्लॉथ शॉप में वो गए। शॉपकीपर ने उनसे पूछा कि आपको किस तरह का क्लॉथ चाहिए, किस तरह का फैब्रिक चाहिए, आपको कॉटन चाहिए, सिंथेटिक चाहिए, कि जो है वुलन चाहिए। ओके, तो दे गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि फैब्रिक भी कोई चीज होती है ना। तो फैब्रिक के बारे में उन्हें आइडिया नहीं था। शॉपकीपर ने उन्हें समझाया कि देखो, कुछ फैब्रिक्स होते हैं, फैब्रिक्स मतलब टाइप ऑफ क्लोथ्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं जिनसे वो कपड़े बनते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से अलग अलग तरह के फैब्रिक का यूज करते हैं। जैसे शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि आप कॉटन है, कॉटन की ये इस तरह ये कॉटन है, ये जो है समर में बेस्ट यूज है। फिर सिंथेटिक कपड़े हैं जो गुड लुकिंग होते हैं, और ये वुलन है, मफलर्स है, शॉल है, ये विंटर में जो है हमें ठंड से बचाते हैं। तो ये तीनों अलग अलग फैब्रिक्स हैं। अब जब बहजी एंड फूलो बूझो को ये जो है बहुत ही एक्साइटिंग लगा, उन शॉपकीपर ने उन्हें जो है सिल्क साड़ीज के बारे में भी बताया। ओके, और ये सब जान करके पहली एंड बूझो जो है बहुत सारे एक्साइटेड हो गए। उन्होंने टच किया डिफरेंट फैब्रिक्स को और जो है उनको समझने की कोशिश की, और लास्टली उन्होंने क्या खरीदा अपने पेरेंट्स के, वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। साड़ी जो है खरीदी मम्मी के लिए, और वुलन मफलर जो है अपने पापा के लिए। ठीक है। सो after their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding. They found that bed sheets, blankets, certain curtains, tablecloth, towel, and dusters were made from different kind of fabric. Even their school bag and their gunny bag were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabric as cotton, wool,
silk or synthetic? Can you also identify some fabric? तो जैसा पहले अनबुझो ने जो है उन्होंने क्लॉथ शॉप में विजिट किया और उन्होंने नोटिस करना शुरू किया जब से वो क्लॉथ शॉप से रिटर्न आए कि बहुत सारे फैब्रिक जो है अपने सराउंडिंग में वो देख रहे हैं। वो अपने घर पे देख रहे हैं कि बेडशीट है, ब्लैंकेट है और कर्टेन्स हैं खिड़कियों में, दरवाजों में, टेबल क्लॉथ है, टॉवेल है, डस्टर है। ये सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक के बने हुए हैं। इवन उनका स्कूल बैग, गनी बैग जो है वो भी अलग अलग फैब्रिक्स के बने हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सराउंडिंग में जो है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फैब्रिक जो है देखा, उसको पहचानने की कोशिश की, उसको जो है कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक में क्लासिफाई करना सीखा, है ना। तो आप भी इसको जो है प्रैक्टिकली कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फैब्रिक जो है डिफरेंट वैरायटीज जो आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, अपने घर में जो है देखिए और उनको आइडेंटिफाई करिए। मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछिए और जानिए, है ना, कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, कौन ऊल है, कौन सिल्क है ना। ओके, सो नाउ वेराइटी इन फैब्रिक्स। तो हम लोग फैब्रिक्स में जो वैरायटीज की अभी बात कर रहे हैं उसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी ये करना है कि विजिट नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। ओके, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. Okay, अब जो है आप जो है क्या करना, आपको ये है कि आपको जो है टेलर शॉप जाना है और उसमें वहां पे आपको जो है जो कपड़े टेलर जो टेलरिंग करने के बाद जो है जो कपड़े कटिंग के पीसेस के कपड़े बच जाते हैं तो आपको कलेक्ट करना है डिफरेंट वैरायटीज के, है ना। और आपको फील करना है, टच करना है पीसेस ऑफ फैब्रिक को, आपको उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है, फिर उनको लेबल करना है कि किस तरह का फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है, ऊल है, सिंथेटिक है ना। आप जो है टेलर से पूछ सकते हो, टेलर आपको जो है रियली बताएगा। ओके, do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now, look at it closely. What do you notice? Okay. जब आप फैब्रिक को देखेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किस चीज का बना हुआ है ना। और आप जब इसको देखेंगे, आप देखेंगे इसमें कंटिन्यूअस पीसेस जो है, कंटिन्यूअस फाइबर्स जो है ना, कि सो जो है ये बना हुआ है ना। इसको आप बहुत क्लोजली देखिए, आप हैंड लेंस का प्रयोग करके देख सकते हैं इसमें किस तरह के फाइबर जो है एक दूसरे में जो है गुथे हुए रहते हैं, है ना। अब आप जो है नेक्स्ट एक्टिविटी करिए जो आपको इसको और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। सो एक्टिविटी 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarns made up of? तो आपको एक एक्टिविटी ये करना है, आप तो अभी अपने फैब्रिक को पहचाना, अब आप जो है उसमें यार्न जो होता है जिससे वो फैब्रिक बना होता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो आपको जो है उस फैब्रिक से निकालना है और उसको फील करना है, टच करना है और लर्न करना है ना। तो आपको जैसे कि आप कॉटन की फैब्रिक ले लीजिए, है ना, और उसमें से अगर कोई लूज थ्रेड है जिसको कि हम लोग यार्न बोलते हैं, तो उसको एक किनारे से खींचने का कोशिश करिए, है ना। अगर वो नहीं निकलता है तो आप पिन का यूज कर सकते हैं, नीडल का यूज कर सकते हैं, है ना। और उसको आप निकाल करके देखिए और उसको पहचानने की कोशिश करिए कि ये किस चीज का बना है, कैसे बना होता है ना। इसके बारे में क्वेरी कीजिए। ओके, नाउ फाइबर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फाइबर, है ना। अभी तो हमने फैब्रिक सीखा, अब हम लोग सीखेंगे कि फाइबर क्या होता है ना। तो एक्टिविटी 3 करिए इसके लिए आप। टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक,
Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure. Okay. Do you find that at this end the yarn split up into thinner strands? Okay. आपको करना क्या है कि आपने जो पिछले कॉटन के फैब्रिक से आपने एक पीस निकाला था यार्न का, उसको अभी आपको क्या करना है कि आपको इसको जो है टेबल में रखना है, उसको जो है उसके आपको एंड को जो है प्रेस करके रखना है। ओके, अपने थंब से थोड़ा सा स्क्रैच करना है एक किनारा आपको। ओके, और दूसरे एंड से जो है आपको करना क्या है, ये आपको जो है उस जो है आपने जो जिसको लूज किया तो उसमें से आपको एक पतला सा जो है थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर, उसको आपको वहां से जो है अपने नेल के हेल्प से या फिर किसी किसी भी तरह आप उसको जो है बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आपको जो है एक बहुत ही पतला जो है स्ट्रैंड मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? ओके, ये क्या है? आप ये देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे आप स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ओके, आप देखिए आपने यार्न ले लिया, अपने एक थंब से दबाया एक तरफ और दूसरे से उसको जो है थोड़ा सा जो है उसको स्क्रैच किया, और तब आपने देखा कि इस तरह से जो है आपको स्ट्रैंड जो है थ्रेड स्ट्रैंड जो है मिलेंगे, है ना। और इस तरह से स्प्लिट किए हुए स्ट्रैंड मिलेंगे, है ना। तो इसको आपको जो है निकालना है और आपको ऑब्जर्वेशन करना है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Okay, many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we use are made up of still thinner strands called fibers, है ना। अब जो आपने जो है यार्न से जो आपने जो है स्ट्रैंड्स वेरी थिन स्ट्रैंड्स जो निकाला है, वो आप ऑब्जर्व करो बहुत ही पतला है और कितने सारे स्ट्रैंड से जो है ये यार्न जो है बना हुआ है ना। तो ये जो आपने यार्न निकाला, ये यार्न के अंदर से जो स्ट्रैंड निकाला, ये जो पतले पतले स्ट्रैंड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं, है ना। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarn and sorry, fabrics are made up of yarn and yarn are further made up of fibers. Okay, where do these fibers come from? तो अभी आप देखिए, आपने तीन स्टेप में सीखा। पहले तो फैब्रिक्स हो गए, फैब्रिक्स जो आपके जो है कपड़े आए कंप्लीट वन विदाउट स्टिचिंग, वो फैब्रिक हो गए। फैब्रिक से आपने जो है यार्न निकाला, है ना। यार्न जो है पतले पतले धागे होते हैं, और वो यार्न से जब आपने उसको स्प्लिट किया तो आपको फाइबर मिला। तो थ्री लेवल ऑफ जो है आप यहाँ पे सीखे कि कैसे जो है फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है ना। अब जो है मेन थिंग जो आपको सीखना है वो ये है कि ये जो है स्ट्रैंड जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, वो आता कहाँ से है ना। So, the fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk, and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak, and camel. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो है फाइबर्स वो कहाँ से आए। तो पहली बात कि ये फाइबर्स जो है कहाँ से आते हैं, ये तो क्या है, या तो कॉटन से आएंगे, जूट से आएंगे, सिल्क है, ऊल है ना। ये हमें जो है कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो जो फाइबर्स हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, है ना। कॉटन एंड जूट जो है आपका एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर्स का। ऊल एंड सिल्क जो है आपका एग्जाम्पल है एनिमल फाइबर्स का, है ना। ऊल कहाँ से मिलता है आपको? फ्लीश ऑफ sheep और गोट। ओके, गोट और सीप के फ्लीश से मिलता है। आप क्लास 7th में इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे कि कैसे फ्लीश जो है से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके जो है
यार्न जो है ये फाइबर जो है निकाला जाता है ना। इट इज ऑल्सो obtained from the hair of rabbit, yak and camel। ये जो एनिमल फाइबर है वो हमें रैबिट से भी मिल जाता है, याक से भी मिल जाता है और कैमल से भी मिल जाता है ना। और सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? कोकून ऑफ सिल्क वर्म से। ओके। Now, for thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या ये जो है फाइबर्स है या नए फैब्रिक है, इसकी जानकारी जो है पहले से है। कब सीखा लोगों ने इस चीज को? फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नेचुरल फाइबर वेर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, है ना। बहुत लंबे समय से जो है आपका नेचुरल फाइबर जो है वही हमारे पास सोर्स था। और ह्यूमन के पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि उसको जो है केमिकल से भी बनाया जा सकता है ना। लेकिन अभी लास्ट 100 ईयर्स में जो है बहुत सारे प्रोसेसेस फाइंड आउट कर लिए गए हैं कि इसको हम लोग फैक्ट्रीज में बना सकते हैं, केमिकल्स का यूज करके भी फाइबर्स बना सकते हैं। तो जो केमिकल्स का यूज करके जो फाइबर्स बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं ना। अब देखिए बूझो के पास एक क्वेश्चन है। भाई बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम्स आइटम्स लाइक द वन shown here. These were worn by warriors. You want to know if these are made of some kind of fiber. ओके। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आप म्यूजियम कभी गए होंगे तो इस तरह का आपने जो है सुरक्षा कवच जो है आपने देखा होगा। प्रोटेक्टिंग कवर जो है आपने देखा होगा, जो राजा रजवाड़े पहना करते थे लड़ाइयों में जाने से पहले। तो वो जो पूछ रहा है कि क्या ये भी किसी फाइबर का बना हुआ है? नहीं, ये तो मेटल का बना हुआ है। ओके। नाउ सम प्लांट फाइबर्स। अब हम लोग सीखेंगे कि जो प्लांट फाइबर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। कॉटन। हैव यू एवर मेड wicks फॉर oil lamps? What do you use for making these wicks? These cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small, thin strands that you see are made up of cotton fibers. Okay. अब आपको करना क्या है कि आपने कभी देखा है कि आपके जो ऑयल लैंप्स के जो विक्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व किया है? जो कॉटन वूल है, ओके, ये भी जो है आपका जो है भरा जाता है कहाँ पे? मैट्रेसेस में, क्विल्ट्स में और पिल्लोज में, है ना। पिल्लोज में आपके भरे रहते हैं कॉटन के वूल। नाउ टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एडजेस। आपको करना है कि आपको कॉटन वूल को जो है लेना है, इसके आपको जो है इसमें से एक जो है फाइबर लेना है, उसके किनारों को आप देखिए, है ना। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आप जो है फाइंड आउट कीजिए। आप देखेंगे कि पतला सा, छोटा सा पतला सा स्ट्रैंड है ना, जो कि कॉटन के फाइबर से बना हुआ है ना। Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, that is cotton bolls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. Okay. तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉटन है ये कैसे आता है ना। तो आपको करना क्या है, ये जो कॉटन है ये कहाँ से आता है? ये ग्रो किया जाता है फील्ड में, है ना। कॉटन प्लांट्स होते हैं। कॉटन प्लांट्स जो है कहाँ ग्रो करते हैं? ये जो है ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, है ना।
और आप कुछ स्टेट्स आप जानते होंगे, जैसे कि आपका जो है कहाँ पे ब्लैक सॉइल्स मिलते हैं आपको, गुजरात के रीजन में है ना। उस रीजन में आपको जो है ब्लैक सॉइल जहाँ भी मिलेंगे, वार्म क्लाइमेट जहाँ भी मिलेंगे, अब वहाँ पे जो है ये कॉटन के जो है ग्रो किया जाता है ना। और ये जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, जो कि लेमन के साइज का होता है, जो कि मैच्योर जब हो जाता है, ओके, मैच्योर होना कि जब वो ड्राई हो जाता है, ओके, पहले तो फ्लावर होगा, फिर फ्रूट बनेगा, फिर वो ड्राई हो जाएगा, उसमें अंदर में सीड्स मिलेंगे, और ये जो है लेमन के साइज का जो कॉटन बॉल होता है वो बर्स्ट हो जाता है ना, मैच्योर होने के बाद, और ओपन हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं कॉटन फाइबर से, है ना। ओके। तो हमको जो कॉटन प्राप्त होता है इसी बॉल से प्राप्त होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं बाय पिकिंग। ओके, पिकिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस फॉर गेटिंग फाइबर्स from these balls. Cotton is usually picked by hands. Fiber are then separated from the seed by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. तो पहले क्या है, ये जो बॉल्स है उसको तो पहले पिक कर लिया जाता है फील्ड से, उसके बाद इसको जमा करके जो है एक प्रोसेस होता है गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जो कॉटन के बॉल्स हैं उसमें से सीड को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग गिनिंग बोलते हैं ना। ये तो या तो हैंड से होता है और आजकल तो मशीनों से भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट plant fiber is jute. Okay, so jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stems, rot and fiber are separated by hand. ये देखिए जूट का प्लांट है यहाँ पे, इससे जो है जूट फाइबर हम लोग मिलता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ये स्टेम से मिलता है। स्टेम से कैसे मिलेगा, जब इसका कल्टीवेशन होता है रेनी सीजन में, है ना। और ये नॉर्मली कहाँ पे ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में, है ना। जब जूट का प्लांट जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसको फील्ड से कट कर लिया जाता है, और कब किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में रहता है ना। तो फिर क्या करते हैं, इसका स्टेम को जो है क्या करते हैं, पानी में जो है डुबो देते हैं, लंबे समय के लिए पानी में डुबो देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो स्टेम है वो रॉट होता है, सड़ जाता है, और इसके फाइबर्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, और यही जो फाइबर्स आते हैं वही हम लोग एज ए जूट फाइबर यूज करते हैं, है ना। तो इससे हम लोग यार्न निकाल लेते हैं और इसको हम लोग फैब्रिक्स बनाने में यूज करते हैं। आपका जो गन्नी बैग्स है वो इसी यार्न से बनते हैं। नाउ स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब तो आपने प्लांट से सोर्सेज से जो है आपने फाइबर्स ले लिया। अब फाइबर्स को स्पिन करके यार्न बनाना है ना, बहुत सारे फाइबर्स को मिला करके जो है उसको धागे में कन्वर्ट करना है। तो इसके क्या होता है, स्पिनिंग प्रोसेस होता है। ओके। Activity 4. Hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? The process of making yarn from fiber is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. तो एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको थोड़े से कॉटन लेना है, उसको अपने दोनों हैंड्स में लेना है ना। और उसको क्या करना है कि एक हैंड से आपको ट्विस्ट करते हुए उसको जो है धीरे धीरे जो है खींचना है ना। ट्विस्ट करते हुए आपने यहाँ पे कॉटन की बॉल ले ली, उससे से एक सिरा जो है पकड़ करके इसको ट्विस्ट करते हुए आपको जो है इसको खींचना है। अब क्या करो, देखोगे कि धीरे धीरे जो आपको एक धागा के जैसे जो है आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, यही जो है यार्न है ना। तो इसी को बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Okay, takli. Another hand operated device used for spinning is charkha.
Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and spun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the Government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो जैसा कि आपने एक्टिविटी किया, जो प्रोसेस है स्पिनिंग, स्पिनिंग क्या है? आपके फाइबर से जो है बहुत सारे फाइबर्स को जो है धागे में कन्वर्ट करना, धागे बनाना, ये जो प्रोसेस है दैट इज मेकिंग ऑफ फाइबर टू yarn इज कॉल्ड स्पिनिंग, है ना? ये जो है तकली में की जाती है। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने एक जो है और जो है डिवाइस को जो है पॉपुलराइज किया था, वो है चरखा। ओके, तो चरखा से को पॉपुलराइज किया क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, हमारे यहाँ जो है जाते थे, लेकिन वो जो है अंग्रेजों द्वारा जो है इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता था, और वहां से जो है वो जो है बने हुए फाइबर्स और क्लोथ्स आते थे, तो वो जो है इंडियंस को महंगे पड़ते थे और कोई रोजगार भी नहीं मिलता था। इसलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और जो है चरखे का प्रचार किया और सबको कहा कि भाई अपने जो है घरों में आप जो है चरखा चलाएं और खुद से कपड़े बनाएं और उसको पहने, और ब्रिटेन से आए हुए कपड़े ना पहने, है ना? आजादी के बाद भारत सरकार ने भी इस चीज को बढ़ावा देने के लिए जो है फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना की 1956 में, है ना? ओके, नाउ 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अब क्या है कि हमने यार्न बना लिया, अब उसको हमको कन्वर्ट करना है फैब्रिक में। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि वीविंग। वीविंग में क्या करेंगे, जैसे कि you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. This process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving, है ना? तो जैसा कि आपने एक्टिविटी 2 किया था, जिसमें आपने नोटिस किया था कि जो फैब्रिक होते हैं वो दो सेट्स ऑफ यार्न के साथ एक दूसरे के साथ इस तरह से जो है गुथे होते हैं ना, इस तरह से गुथे होते हैं। तो ये जो है, यही जो गूंथने का जो प्रोसेस है, वही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीविंग बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये एक एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि आपको दो कलर के शीट लेने हैं, एक आप रेड ले लो, एक जो है ग्रीन ले लो। आपको इसके जो है 30 सेंटीमीटर लेंथ, 30 सेंटीमीटर वाइड होगी, ठीक है? आप देखो इस तरह के पेपर्स ले लेना। फिर आपको करना क्या है, ग्रीन शीट को जो है आपको बराबर बराबर लेंथ में काटना है। ऊपर में आपको जो है कटिंग नहीं हटानी है, ओके, कटिंग पूरी नहीं करनी है, यहाँ तक से जो थोड़ा छोड़ करके आपको यहाँ से कटिंग शुरू करनी है। ओके, ओके। उसके बाद आप रेड वाली जो शीट है उसका पूरी जो है लेंथ में आप काट लीजिए उसको। वो भी शीट 30 बाई 30 की होगी। अब उसको लेंथ में बराबर बराबर लेंथ में, बराबर बराबर लेंथ और विड्थ में काट लीजिए, पतले पतले। और उसको जो है आप इस तरह से जो है, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, आपको जो है आपको वीव करना है ना? तो इस तरह से जो है आपको ये एक्टिविटी आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप समझ सको कि भाई वीविंग होता क्या है ना? और ये समझने के लिए ये एक्टिविटी आप घर में प्लीज करिए और अपना बना करके पिक्चर्स जो है आप हमें सेंड करिए। ओके, ठीक है? ये अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि वीविंग कैसे होता है। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो है हैंडलूम मशीन होती है, वो भी वीविंग के लिए ही होती है ना? वेव्स में जो कि फैब्रिक्स जो है बड़े बड़े कपड़े होते हैं, तो उसको जो है इस तरह से और धागे भी बहुत पतले होते हैं जो यार्न है, तो उसके लिए घर में जो है हैंडलूम यूज किए जाते थे पहले बहुत ज्यादा। अब तो मशीनें भी आ गई है, मशीन यूज किया जाता है ना? उसके बाद आप देखिए निटिंग। निटिंग भी आप जानते हो, निटिंग में आपने घर में देखा होगा आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर जो है वो ऊल का जो ये यार्न आता है उसको यूज करके एक सिंगल यार्न करके पूरा का पूरा फैब्रिक जो है नीट कर देते हैं, आपके लिए स्वेटर बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, है ना? तो इस तरह से
निटिंग और वीविंग दो प्रोसेसेस हैं आपका किस काम के लिए? यार्न टू फैब्रिक बनाने के लिए, है ना? तो आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, आप इजीली समझ रहे हो इस चीज को, है ना? अब देखिए पहली के पास क्या क्वेरीज है। पहली want to know if you have seen any fabric that are made of outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? Okay. पहली जो है जानना चाहती है कि क्या आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि बना रहता है किसका? आउटर कवरिंग कोकोनट, कोकोनट की आउटर कवरिंग की बनी होती है। आपने रस्सी देखा होगा, रस्सियां बनती हैं मोटी मोटी, और है ना, वो कोकोनट के आउटर जो छिलके होते हैं उसके यार्न जो है निकाल करके वो बनते हैं, है ना? ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड what materials people used in ancient time for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of tree or animal skin for to cover themselves. आप जैसे जानते हो कि जब जो है लोग नहीं जानते थे कि कैसे स्टिच करना है ना? पुराने समय में लोग जो है, जो आदिम मानव थे वो जो है एनिमल का स्किन यूज करते थे, जानवरों के फर यूज करते थे, है ना? और उसको अपने शरीर को ढकने के लिए यूज करते थे। जब लोग सेटल होने लगे, है ना, जब लोग घर में रहने लगे, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, है ना, कम्युनिटीज में रहने लगे, तब उन्होंने जाना कि कैसे जो है ट्विग और ग्रास को जो है मिला करके मैट बनाएंगे, बास्केट बनाएंगे, है ना। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस किए कैसे हम ट्विस्ट करके जो है हेयर्स, एनिमल्स के हेयर्स है, फ्लीस है, उसको ट्विस्ट करके जो है हम लोग बना सकते हैं फैब्रिक्स, है ना। और उसको जो है कैसे हमको फैब्रिक में कन्वर्ट करना है। पहले के लोग जो है जो फैब्रिक पहनते थे वो किसके बने होते हैं? मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। पहले के समय में जो है ज्यादातर जो ये हाँ, ये जो इंडस्ट ग्रो किया गया कॉटन जो है उसके फील्ड जो है गंगा नदियों के किनारे जो है उगते थे, है ना। उसके बाद एक और है फ्लैक्स, है ना। फ्लैक्स का भी जो है ये भी एक नेचुरल फाइबर है जो कि यूज किया जाता है आपका फैब्रिक्स बनाने के लिए। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स were cultivated near the river Nile and were used for making five fabrics. तो ये जो है इजिप्ट, इजिप्ट आपने सुना होगा, बहुत ही पौराणिक हिस्ट्री है इसकी। तो वहाँ पे जो है फ्लैक्स जो है ग्रो किया जाता था नाइल रिवर के नज़दीक में, और उसके फैब्रिक का यूज किया जाता था। In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabric around different parts of their body. Many different ways of draping fabric were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. तो उस समय से लेकर के जो है देखिए अभी तक में आप फैब्रिक्स में जो है आप देख सकते हो कितने डेवलपमेंट हुए हैं। और जो स्टिचिंग का, जब लोगों ने स्टिचिंग सीखा, नीडल का प्रयोग सीखा, तो आप देखो आपने कितने अच्छे अच्छे कपड़े स्टिच किए हुए फैब्रिक्स के जो है क्लोथ्स आप पहन रहे हो, है ना। तो फैब्रिक से क्लोथ्स जो बना वो स्टिचिंग से जो है आप वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स पहनते हो, है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो है फैब्रिक्स है जो कि बिना स्टिच के यूज किए जाते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, तुरबान, है ना। ये अनस्टिच होते हैं और ये ऐसे ही आज भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जस्ट एज देर इज a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric. इस तरह से जो है आप देखोगे कि बहुत पूरे वर्ल्ड में वैरायटीज ऑफ कंट्री क्लोथ्स जो है फैब्रिक्स जो है यूज किए जाते हैं, ना। अब आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा? आपने जो है फाइबर से जो है फैब्रिक बनाना सीखा। आपने प्लांट सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि हम लोग को कहाँ से जो है प्लांट से सोर्सेज से मिलते हैं। आपने एनिमल सोर्सेज के बारे में जाना कि उनको कहाँ से जो है मिलते हैं फाइबर्स, है ना, जिसको हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने कॉटन का सीखा, कॉटन रोल से जो है गिनिंग के प्रोसेस के थ्रू फाइबर्स बनाते हैं।
और फाइबर से स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू यार्न बनाते हैं, और यार्न से जो है या तो निटिंग या विविंग, दो प्रोसेस है जिससे हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, है ना। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने पूरे चैप्टर में जो है कैसे सीखा कि फाइबर से फैब्रिक बनाना है। हमने एक्टिविटीज भी किए और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सीखा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कहीं पे समझने में कहीं भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं इसके समरीज बताऊँगा, इसके जो है आपको कीवर्ड्स बताऊँगा। ओके, और आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगा। ओके ओके बच्चों, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।